topic is open doors. आज का जो विषय है वो खुला द्वार है। So just go to the word Revelation chapter 4 verses 1. Just Revelation. a minute. I need to silent my mobile because Okay. unnecessary phone calls will come and then it will disturb us. Yeah. Yeah. आइए प्रकाशित वाक्य का 4:1। It is written, Then as I looked, I saw a door standing open in heaven, and the same voice I had heard before spoke to me like a trumpet blast. The voice said, Come up here. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले से तुर्री के से शब्द से अपने साथ बताते करते सुना था वही कहता है यही ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनकी इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Father, in the name of Jesus, I am praying for each and everyone. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let the power of God manifest in their life. परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो जाए। Let all the closed doors in their life, I command it to open in the mighty सारे name. बंद द्वार जो उनके जीवन में है मैं उनको आज्ञा देता हूँ वो खुल जाए। I cancel every hindrances coming from the enemy in the mighty name of सारे रुकावट की आत्मा जो उनके जीवन से मैं खंडित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम In the से। name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ आमीन। So, if you look at this verse, you can see that here two things are happening. यहाँ कर हम देखते दो बातें हो रही है इन वचनों में। You can see that the John is seeing a vision. यहाँ पे हम देखते योना एक दर्शन को देख रहा है। He saw a door is standing open. उसने देखा एक द्वार खुला हुआ है। Second thing, he heard a voice. और दूसरी बात उसने एक आवाज सुनी। So, if you want to enter to a place, that means you need a door. अगर हमें किसी स्थान में जाना है तो वहां पे हमें एक द्वार के अंदर से प्रवेश करना है। You cannot enter into a spiritual realm without having a door. कोई भी आत्मिक क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं कर सकते वो द्वार के बिना। So that there are there are doors in the spiritual realm. हाँ, आत्मिक क्षेत्र में द्वार है। So we can say that Joseph saw the angels ascending and descending on the ladder. हम देखते यूसुफ ने Jacob. जॉन Jacob. याकूब हम देखते याकूब ने पुराने नियम ने स्वर्गदूत को ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए देखा। So you can see that in that place a door is opened. तो हम देखते वहां पर कि एक द्वार खुल गया। And there the heaven is connecting with the earth through a portal or through a door. और हम देखते कि स्वर्ग धरती से कनेक्शन कर रहा है एक द्वार के द्वारा से। So if you look at, there are different doors in the spiritual realm. आत्मिक क्षेत्र में अलग अलग द्वार है। There is a door in the financial realm. एक द्वार है आर्थिक क्षेत्र में। If you look at the Deuteronomy chapter 28 verses 12. वैश्यवरण 28 का 12वां अध्याय को अगर हम देखेंगे, The Lord will open to you his good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season and bless all the work of your hand. Okay. Oh, sorry. I opened Leviticus by mistake. Leviticus I opened. I have to open Deuteronomy. I'm opening it. यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। So you can see that here God can open a door in your financial realm. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आपके आर्थिक के क्षेत्र में द्वार को खोल सकता है। आमीन। God is in control of the doors. परमेश्वर सारे द्वार पे नियंत्रित करता है। He can open and shut any door he wants. परमेश्वर कोई भी द्वार को खोल सकता है और उसे बंद भी कर सकता है। Go to the Revelation chapter 3 verse 7. Revelation chapter प्रकाशित वाक्य का 3 का 7 में अगर हम चले, These things says he who is holy. ये वचन वो बोलता है जो पवित्र है। He who has the key of David. He who जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। He opens and no one shuts, and shuts and no one opens.
जिसके खोले हुए कोई जिसके खोले हुए का कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। That means the God is in total control. हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रित करता है। How many of you heard a testimony in my YouTube channel? कितने लोगों ने भाई मानी जेकब की उस गवाही को सुना जो यूट्यूब पे जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, वो गवाही कितने लोगों ने सुना या देखा है वो गवाही को? हाथ It's ऊपर करके बताइए। it's a testimony about of a doctor ये गवाही है एक डॉक्टर के बारे में। and who is from Africa. ये डॉक्टर जो है अफ्रीका देश से है। And last year when I met him, God showed me he's going to UK. पिछले साल जब परमेश्वर ने भाई मानी जेकब से उनकी मुलाकात हुई तो भविष्यवक्ता मानी ने बोला कि ये डॉक्टर जो है ये यूके देश जाने वाले हैं। And I also saw that he is going to study something about heart. और परमेश्वर ने मानी जेकब को दिखाया कि ये जो डॉक्टर है हृदय के बारे में पढ़ाई करने वाला है। And I released the prophecy and prayed for him. और बानी जेकब भविष्यवक्ता ने इनके लिए वो भविष्यवाणी उनके लिए बोल दिया और प्रार्थना भी किया। And after that, whatever exam he wrote, all the exam he passed. और उसके बाद जो भी परीक्षा ये भाई ने किया उन सारी परीक्षा में ये भाई सफल हुआ। And all over the world, I think more than 30,000 people are writing the exam, and he became the top. ओह, और अब ये जो परीक्षा सारे संसार में सारे जगत के लोग ने परीक्षा दिए, करीब 30,000 लोगों ने वो परीक्षा दी और ये जो डॉक्टर है सर्वोत्तम आए, पहले नंबर पे आए। And आमीन। I think he is now, and today itself, I think he's traveling to UK. और आज ही ये भाई यूके जा रहे हैं सफर में। So what I am trying to say, when a prophecy is given, a door opened. तो भविष्यवक्ता मानी क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भविष्यवाणी बोली जाती है उस समय एक द्वार खुल जाता है उस भविष्यवाणी के साथ। God is in control. He can open and close anything he wants. परमेश्वर नियंत्रित करता है और वो सारी कोई भी द्वार को खोल सकता है और कोई भी द्वार को बंद भी कर सकता है। That आमीन। means he holds the key of David. इसका यह मतलब है कि परमेश्वर के पास दाऊद की चाबियां है। Which means the ultimate authority. इसका यह मतलब है कि वो आखिरी अधिकार, वो सब सर्वोत्तम अधिकार। And this verse is also, there is a reference about Jesus. और यहाँ पर हम यीशु के बारे में भी बताया गया है, Jesus and his authority. यीशु और उसके अधिकार के बारे में। In Isaiah chapter 22 verses 22. यशायाह का 22 The key of the house of David I will lay on his shoulder. So और दाऊद के घराने की चाबी मैं उसके कंधों पे डालूंगा। he shall open and no one shall shut. ये चाबी कोई भी द्वार, वो द्वार को खोलेगा और कोई उसे बंद नहीं कर सकेगा। And he shall shut and no one shall open. और वो उस द्वार को बंद करेगा और उस द्वार को कोई नहीं खोल सकेगा। So this is a reference from the Old Testament that is now fulfilling in the New Testament. और ये जो वचन है पुराने नियम का है, यशायाह का 22 और अभी ये वचन नए नियम में पूरा हो रहा है प्रकाशित वाक्य का 3:7 में। So imagine anyone who has a master key who can open and close doors. आमीन। अभी आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी चाबी है जिसको हम बोलते हैं मास्टर चाबी, जो कोई भी द्वार को खोल सकता है और कोई भी द्वार को बंद भी कर सकता है। And in today's meeting, the Lord is opening door of different spiritual realms. और आज की जो सभा है परमेश्वर अलग अलग आत्मिक द्वारों को खोल रहा है। आमीन। And at the same time, he can close every demonic doors that has Amen. opened in your life. आमीन। और इसी के साथ साथ परमेश्वर कोई भी शैतानी द्वार है आपके जीवन में उनको भी बंद कर सकता है। I know in today's meeting there was there was an interruption. It was not normal. या आज की जो सभा थी, सुबह जब शाम की 6:30 बजे की जो मीटिंग थी वहां पे एक रुकावट आई और ये रुकावट साधारण रुकावट नहीं थी। I was unable to open the camera. और भाई भविष्यवक्ता मानी अपने लैपटॉप का कैमरा चालू ही नहीं कर पा रहे थे। And me and my Nigel mother tried different methods. भविष्यवक्ता मानी और नाइजल भाई ने बहुत कोशिश की वो लैपटॉप का कैमरा को चालू करने के लिए। Nothing happened, and after that I phoned one of my friend who is an expert in computer.
और इसके बाद भविष्यवक्ता मानी एक ऐसे भाई से भी मदद लेने की कोशिश किए जो कंप्यूटर में एक एक्सपर्ट है। And he said there's a technical problem in the hardware, so that is the problem. और वो भाई ने बोला कि हार्डवेयर में कुछ बहुत बड़ी समस्या है और इसी कारण से वो कैमरा चालू नहीं हो रहा है। I asked him if even if I update my software, there is any chance. तो भविष्यवक्ता ने मानी ने उनको पूछा भी था कि अगर वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो क्या संभावना, कुछ संभावना है क्या? He said no chance. तो उन्होंने ये उत्तर दिया कोई संभावना नहीं है। But I put my laptop on updation mode. यस, अब भविष्यवक्ता मानी ने लेकिन क्या किया, अपने लैपटॉप को अपडेट करने में डाल दिया। And the Lord showed me the time 9 p.m. और परमेश्वर ने उनको वो समय भी बता दिया, 9 बजे शाम को, रात को। And exactly towards the 9 p.m. what happens when I opened my computer, the camera became open. आमीन। और 9 बजे जब भविष्यवक्ता मानी ने अपने लैपटॉप को चालू किया, उसी क्षण में उनको वो कैमरा चालू होते हुए उन्होंने देख लिया। So demonic realm try to close your door, but the God can open the door. आमीन। शैतानी शक्तियां ने क्या किया, आपके द्वार को बंद करने की, वो द्वार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने वो द्वार को खोल दिया, जो कैमरा का था वो खुल गया। Every time we have the victory. हर एक समय पे हम जयवंत है, हम जयवंत, हर एक समय पे हम जयवंत है। And my friend has there is no explanation for my friend how it happened. Yes, even for me, I also cannot understand it. Yes, I'm also a computer guy. So, और मेरे भविष्यवक्ता मानी बोल रहे, उनका जो दोस्त है, मित्र जो कंप्यूटर में एक एक्सपर्ट है, उनको समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। I said this is something which is beyond the science. और ये भविष्यवक्ता मानी बोले कि ये साइंस के से बढ़कर अलग है, ये कुछ और अलग ही हुआ। So today's meeting, the same thing, all the demonic doors, whatever is opened in any of your life, it will be closed. आमीन। आज की जो सभा, कोई भी द्वार जो शैतान की ओर से है, जो आपके जीवन में खुली है, वो सारी शैतानी द्वार आज आपकी जीवन में बंद होने वाली है। आमीन। In Revelation chapter 1 verses 18, it is written, प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। So greater enemy of mankind is death and the grave. Can you repeat it please? The greater enemy of the mankind is death and the grave. Yes. मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है मृत्यु और कब्रिस्तान। सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु और कब्रिस्तान। And the good news is now Jesus holds the key of that realm. और सबसे अच्छी खबर ये है, यीशु मसीह के पास इस क्षेत्र का मृत्यु और कब्रिस्तान की चाबियां यीशु के पास है। आमीन। Which means that Jesus is in control of your life. इसका यह मतलब है कि यीशु मसीह आपके जीवन का नियंत्रण कर रहा है। आमीन। You know that in the past life, death reigned through sin. हम देखते हैं कि पुराने समय में मृत्यु पाप के द्वारा से हावी हो रहा था। So in Romans chapter 5 verses 17 it is written. Romans chapter 5 verses 17. रोमियो का 5:17 में लिखा है, it is written, for if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will be those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reigning. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। So you can see that Jesus overcome death. Now Jesus is Lord of everything. हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह मृत्यु पे जयवंत हुआ और अभी सारे बातों पे वो राज कर रहा है। आमीन। That means no demonic force can hinder your
progress. आमीन। अब इसका ये मतलब अभी कोई भी शैतानी शक्तियां आपके प्रगति को रोक नहीं सकती। आमीन। I request everyone to turn your video on, but the Holy Spirit is यस। inspiring me to say to you, turn your video on. पवित्र आत्मा बोल रहा है, अगुवाई कर रहा है कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। No demonic force can hinder your progress. कोई भी शैतानी शक्ति आपकी प्रगति को रोक नहीं सकता। आमीन। Right now, I can see that demonic forces are now really, removing from your life. The भविष्यवक्ता demonic मानी बोल powers, रहे हैं कि आपके जीवन से, आपके परिवार से जितने भी शैतान का अधिकार जो आपके परिवार में प्रबल हो रहा था, वो अभी जा रहा है। how many of you believe this? Because right now this is manifesting. अभी कितने लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि अभी ये प्रकट हो रहा है। आमीन। Every negative thing that is happened in your life, it is from a demonic force. हर एक नकारात्मक बातें जो अभी तक आपके जीवन में हो रहा था, वो शैतान की ओर से हो रहा था। Sweet sister, the Lord is closing all the demonic forces in your life. स्वीटी बहन, जो भी शैतान का कार्य द्वार आपके जीवन में था, परमेश्वर उन सारे द्वार को बंद कर रहा है। I can see that a door that is opened 13 years before, 13 years before. 13 साल पहले एक ऐसा द्वार जो खुल गया था, Now the door is closing. अभी परमेश्वर उसे बंद कर रहा है। And I release a restoration in the mighty name of Jesus. अभी भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि आपके जीवन में एक पूर्ण स्थापना को वो घोषणा कर रहे हैं। Again I see the door is closing. It is an अभी open वो बोल रहे door. कि अभी वो फिर से देख रहे वो द्वार बंद हो गया है। And you will see the manifestation of this prophecy on an old lady. और आप इस भविष्यवाणी का जो प्रकटीकरण एक बुजुर्ग बहन के ऊपर देखेंगे। And that is coming from your husband's family. और वो बुजुर्ग जो है आपके पति के परिवार की ओर से। I am also seeing that the demonic realms are closing in people's life. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि आप कईयों के जीवन से वो शैतानी का जो द्वार है वो बंद होते हुए देख रहे हैं। Sister Vivesini, whatever the enemy has stolen, it will be restored to you. जो भी शैतान ने आपके जीवन से चुरा है, परमेश्वर आपको लौटा रहा है। In your life also I can see that doors are closing, demonic doors. Yes. आपके भी जीवन में वो द्वार बंद होते हुए वो भविष्यवक्ता मानी देख रहे हैं। And some diseases is not from, that it is not coming from the natural, it is coming from the demonic realm. कुछ बीमारियां जो है वो साधारण रूप से नहीं आ रही है, वो शैतान के ओर से आ रही है। Right now the healing also manifesting for people. अभी भी चंगाई भी लोगों के जीवन में आ रही है। आमीन। In the name of Jesus, in the name, I can right now I see some generational curses, generational diseases are removing from people's body. अभी भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि कई पीढ़ी से जो बीमारियां लोगों के परिवार में आ रही है, लोगों परमेश्वर उसे निकाल रहा है। आमीन। The same disease was on your forefathers, it is now on your body, but now it is coming out of your body right now in the name of जो बीमारी आपके पूर्वजों के ऊपर में थी, वही बीमारी अभी आपके ऊपर में आई है। परमेश्वर उन बीमारियों को निकाल रहा है। आमीन। Rizwan brother, the Lord is saying to you, the God is touching your body right now. Yes. Can you repeat the name of that person? Rizwan. The Lord is touching his body. परमेश्वर आपके शरीर को छू रहा है। Some generational diseases is moving away from your body. Yeah. कुछ पीढ़ी से जो बीमारी आपके ऊपर आई है, परमेश्वर उसे हटा रहा है। आमीन। रेजिमॉन। In the name of Jesus, in the name of, I cancel that demonic force in the mighty name. वो अंधकार की शक्ति को भविष्यवक्ता मानी नकार रहे हैं। आमीन। Right now the Holy Spirit is touching you. The Holy Spirit अभी is touching you. पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आमीन। Right now the Holy Spirit is touching that ligament that has the damage. अभी जो लिगामेंट पे जो वो को नाश हुआ, परमेश्वर उसको स्पर्श कर रहा है। In the mighty name of Jesus, in the mighty name, Father, I cancel every surgery. I release हर एक सर्जरी को भविष्यवक्ता मानी कैंसिल करते हैं। I आमीन। command that ligament to be restored. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि वो लिगामेंट पुनः स्थापना हो जाए, ठीक हो जाए। Just place your hand on that part. उस शरीर के हिस्से पे हाथ रखिए। I command that ligament to be healed right now in the name of वो Jesus. लिगामेंट चंगा हो जाए अभी।
be healed, be healed. चंगे हो जाए. And you will see, you are going to see that miracle today यस itself. सर. In यस the- सर. आज ये आप उस चमत्कार को देखने वाले हैं. आमीन. So just believe that every demonic doors can be closed. आप विश्वास कीजिए कि हर एक शैतानी द्वार बंद हो सकता है. So if you go back to the verse, we can see that John saw a door is standing open. अगर हम वचन में देखें, पर योना ने देखा एक द्वार खुला हुआ देखा. He saw it. योना ने इस द्वार को देखा. It's a vision from God. ये परमेश्वर की ओर से दर्शन है. I prophesy to you, a door of spiritual realm is opening to you. मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि एक आत्मिक द्वार आपके लिए खुल रहा है. You will see visions from God. आप परमेश्वर की ओर से दर्शन देखेंगे. How many of you believe you are going to see visions? कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएगा. Everyone who is listening to my message, you are not here not by just an accident. It is the plan of God. You are here. जो भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, ये आपकी योजना की ओर से नहीं है. परमेश्वर की योजना के अनुसार आप यहाँ पे आए और परमेश्वर ने आपको लाया है. You will see visions. आप दर्शन को देखेंगे. You will see dreams and visions. आप स्वप्न और दर्शन को देखेंगे. We can see that God used a vision to reveal a door to Apostle John. Just hold on, because I need to start the power here. The battery is going low of Okay. the laptop. Just give me a minute. Just give me a minute, please. Okay. Yes, sir. Everybody pray. Everybody pray. Thank you. Yeah. Can you just repeat it, please? Yeah. So you will receive visions from God. आप सब लोग परमेश्वर की ओर से दर्शन को देखेंगे. And here we can see that God used a vision to reveal a door to Apostle John. परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया प्रेरित योना को, और वो दर्शन एक द्वार था. You will also see vision about a door. आप सभी लोग एक दर्शन देखेंगे एक द्वार के बारे में. द्वार के बारे में आप दर्शन देखेंगे. If you go back to the verse, we can see that it is not just a door that just opened. ये एक साधारण द्वार नहीं है जो खुलता है. It is standing open in heaven. ये जो द्वार है वो स्वर्ग में है, और ये द्वार खुला हुआ द्वार है स्वर्ग में. That means it is not just this. It is not a door that just opened. It is already opened. Not ये द्वार. Can you repeat, because there's slight confusion. It is not a just door that just opened. It is Yeah. not a door that just opened. It is Oh, got it. I got it now. ये एक ऐसा द्वार नहीं है जो अभी खुला है, लेकिन ये ऐसा द्वार है जो पहले से खुला हुआ है. so many doors are already opened for you. आपके लिए कई द्वार है जो पहले से खुले हुए हैं आपके लिए. It is there in the spiritual realm. और ये सारे द्वार जो पहले से खुले हुए वो आत्मिक क्षेत्र में है. But you have to see it. लेकिन आपको ये द्वार को देखना है. The Holy Spirit is saying you will see your door open. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप अपने द्वारों को खुला हुआ देखेंगे. You should pray to God. Your eyes may open and see the door. आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं उन खुले द्वारों को देख सकूं. You आमीन. can see that a source of water was already open for Hagar. अगर हम देखेंगे हगार जो स्त्री थी पुराने नियम में, परमेश्वर ने उसके लिए एक सोत्र खोला, पानी का सोत्र. But she was unable to see it. लेकिन हगार जो थी वो पानी के सोत्र को देख नहीं सकती थी. I will give you the verse. Genesis chapter 21 verses 90. Genesis chapter 21 verses 90. उत्पत्ति का 21 का 19 वचन. Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा. तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया. So that means that water was already there.
The source was इसका ये already there. मतलब है कि वो पानी पहले से ही वहां पे प्रबंध था। When Holy Spirit is saying to something to you, that means it is already there. जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज पहले से ही वहां पे मौजूद है। You don't have job, but the Holy Spirit is saying you will go enter, you will enter into a new job. That means it is already there. आमीन। उदाहरण के तौर से आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप एक नौकरी में प्रवेश करेंगे। इसका You are going मतलब वो to, नौकरी, यस यू विल। yes, yes, continue, continue. जब पवित्र आत्मा बोलता है कि आप उस नौकरी में प्रवेश, आपको नौकरी मिल रही है, इसका मतलब परमेश्वर ने वो नौकरी पहले से ही प्रबंध करके रखा है। And I know many testimonies about job is going to happen in our आमीन। अब भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि मुझे मालूम अभी कईयों को ये गवाहियां मिलने वाली है, कई गवाहियां आने वाली है कि परमेश्वर उनको वो नौकरियां दे दिया है। Yesterday I got two testimonies from two different people. कल भविष्यवक्ता मानी को दो लोग से दो भिन्न गवाहियां मिली है। आमीन। And they will soon publish after they receive their appointment letter. They will soon publish their testimony here. और जब उनको वो गवाही, जब उनकी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर जब उनको मिल जाएगा, तब वो अपनी गवाही को हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप पे वो डाल देंगे। So that means it is a favor from God that was already released in their life. आमीन। ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो पहले से ही उनके जीवन में आ चुका था। So everybody should pray, may God open my eyes to see that vision. हर एक जन प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोलिए, ताकि मैं उन चीजों को जो द्वार खुले उनको मैं देख सकूं। So the truth is, a door is already opened for you in the spiritual realm. सच्चाई ये है कि आपके लिए वो द्वार पहले से ही खुली हुई पड़ी है आत्मिक क्षेत्र में। आमीन। You should have the revelation to see it. आपके पास वो प्रकाशन होना चाहिए उन द्वारों को देखने के लिए। And if you have the revelation, you can access that door. अगर आपके पास वो प्रकाशन, तब आप उसमें प्रवेश कर सकेंगे। How many of you believe it? Whatever I am preaching is from God. कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो भी भविष्यवक्ता मानी प्रचार कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है? Again, everyone who is sitting and hearing the message, you are special people. अभी भी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और इस वचन को सुन रहे, आप सब विशेष लोग हैं। आमीन। And I know everyone will receive a testimony. मुझे मालूम है कि हर एक के पास एक गवाही आने वाली है। आमीन। I will give you a verse. John chapter 10 verses 9. योना का 10वां अध्याय का 9वां वचन। So it is written, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। So you can see that we are talking about different doors, but here the word of God is saying about a door, that is Jesus. यहाँ पर हम देखते अलग अलग द्वार के बारे में, लेकिन परमेश्वर एक द्वार के बारे में बोल रहा है, और वो द्वार यीशु ही है। There is no other door which you can access. और कोई द्वार नहीं है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। We can see that in the Old Testament, Jacob saw a ladder. पुराने नियम में हम देखते याकूब ने एक सीढ़ी को देखा, And it is in the word of God it is written that ladder was Jesus. और वचन में लिखा है कि वो सीढ़ी जो है वो यीशु मसीह ही है। And who connected the physical realm with the heavenly realm. और वो सीढ़ी जो थी वो इस धरती को स्वर्ग से मिला दिया। If the door that Jesus Christ is opened in your life, that means every other door will be open. अगर वो द्वार जो यीशु मसीह है वो खुल जाती है, तो सारे द्वार भी खुल जाते हैं। आमीन। That means you can go in and out. इसका मतलब आप अंदर जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। That means you have the authority to enter to the door and access it. इसका मतलब कि आपके पास वो अधिकार है उस द्वार में प्रवेश करने के लिए और वहां पे जाने के लिए। The ultimate authority is given to you. आमीन। वो सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया गया। आमीन। Why when a prophecy is given, why it is happening? जब कोई भविष्यवाणी दी जाती है तो क्यों वो आती है? Because, yes, the authority is given on your word. जब कोई भविष्यवाणी हम बोली जाती है तो उसके साथ में वो अधिकार भी घोषणा की जाती है। The key of David is accessible to you
through Christ. दाऊद की जो कुंजी है हमें दी जाती है यीशु मसीह के द्वारा। That means you can open and close doors. इसका मतलब है कि हम द्वार को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। You can bind things and unbind things on heaven and earth. हम उन चीजों को बांध सकते हैं और चीजों को खोल भी सकते हैं, इस धरती पे और स्वर्ग पर भी। I can say that even if a person who have the Holy Spirit says something about a nation, it will happen. अगर किसी व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा है, अगर उस व्यक्ति ने किसी राष्ट्र के बारे में भी कुछ बोला तो निश्चय वो होने वाला है। I have many testimonies. I have many testimonies in my own life because it is the authority. भविष्यवक्ता के पास कई गवाहियां हैं क्योंकि ये उनके पास वो अधिकार भी है। I have seen laws changed. When the भविष्यवक्ता ने कानून को तब्दील होते हुए देखा है। आमीन। I will give you a verse, Matthew chapter 16 verses 90. मत्ती का 16 का 19। And it is written, I will give you the keys of the kingdoms of heaven, and whatever you bind on earth and will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधूंगा, वो बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। The verse is talking about Peter. यहाँ पर ये वचन जो है पतरस के बारे में है। And the Peter has the revelation of Christ. और पतरस के पास यीशु मसीह का प्रकाशन है। And the same revelation opened his authority. और यही जो प्रकाशन पतरस को मिला वो उसका अधिकार को भी खोल दिया। In other words, a person with the revelation of Christ can open and close doors. इसका यह मतलब कि जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह का प्रकाशन है वो व्यक्ति कोई भी द्वार को बंद भी कर सकता है और कोई भी द्वार को खोल भी सकता। The greater treasure in one's life is the revelation of Christ. सबसे बड़ा ये जो है ट्रेजर एक व्यक्ति के जीवन में वो है यीशु मसीह का प्रकाशन। So if you know Christ more, the authority will be released more. आमीन। आप जितना ज्यादा यीशु के बारे में जानेंगे उतना ही अधिकार आपकी जीवन से बहना शुरू करेगा। And you will see miracles and wonders and manifestations wherever you go. और आप चमत्कार को चिन्ह चमत्कार को आपके जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। So if you access the door of Christ, you are in the realm of this authority. अगर आप यीशु मसीह के द्वार को प्रवेश करेंगे तो हम इस क्षेत्र में अधिकार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। And God will move with you. और परमेश्वर आपके साथ में चलन करेगा। How many of you believe this verse? The same thing will happen to you. कितने लोग विश्वास करते कि ये मेरे भी जीवन में होगा? And again I see that some laws is going to change for somebody who is hearing my message. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कुछ लोगों के लिए कानून भी तब्दील हो रहा है जो इन वचनों को सुन रहे हैं। अभी कानून भी तब्दील हो रहा है। Everything will come in favor of you. सारी बातें आपके पक्ष में आने वाली हैं। आमीन। Dear sister, I can see that a law is turning towards you in favor of you. प्रीति सिस्टर, एक कानून जो है आपके पक्ष में आ रहा है। I can see that a document is being released and it is a favor for you. एक डॉक्यूमेंट आपके पक्ष में आ रहा है जो आपके लिए है। In the mighty name of Jesus, just believe that. Just believe that. I see a change in your identity card. आपके आइडेंटिटी कार्ड में एक तब्दील आ रहा है। Just believe that. आप विश्वास कीजिए। In the name of Jesus. Sister Pushpa, believe that you will see a miracle. बहन पुष्पा, आप विश्वास कीजिए कि आप एक चमत्कार को देखने वाले हैं। I can see that a favor is coming to you. A favor एक is अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। And the same thing what I say that the authority is going to manifest and something favorable thing is going to happen in your life. अधिकार भी आपके ऊपर आ रहा है और आपके ऊपर अनुग्रह भी आ रहा है। At the same time I can see that the God is touching your financial area. I see a salary rise is going to happen. परमेश्वर आपके आर्थिक क्षेत्र को भी स्पर्श कर रहा है और आपके ऊपर में आर्थिक बढ़ोतरी भी आ रही है। La shukurahantana ma shukurahantana. I see a 20% increase is going to happen. आपके पगार में 20% बढ़ोतरी आ रही है पगार में।
I release it for you in the mighty name of आपके Jesus. लिए घोषणा कर रहे भविष्यवक्ता। Also, I can see that a position change is going to happen. आपके औहदे पे को भी परमेश्वर तब्दील कर रहा, आपका औहदा। You are seen, I don't know how much senior you are, but I see a position is coming to you, a authoritative position is coming to you. आपको एक औहदा दिया जा रहा है, अधिकार का औहदा आपको दिया जा रहा है नौकरी के क्षेत्र में आपको। I will give other verse, Revelation chapter 3 verses 8. प्रकाशित वाक्य का 3 का 8। I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। Here, God is saying about an open door, यहाँ पर परमेश्वर एक खुले द्वार के बारे में बोल रहा है which nobody can shut. जो कोई नहीं बंद कर सकता। Again, I say, which nobody can shut. फिर से मैं बोलता हूँ, कोई नहीं बंद कर सकता। Nobody can close a door which is opened by God. कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता है जो द्वार परमेश्वर ने खोला है। आमीन। Some people will say, we have many blessings, but the enemy has stolen. Enemy has blocked my blessing. कुछ लोग बोल सकते हैं मेरे पास बहुत आशीष है, लेकिन शैतान ने मेरी कुछ आशीषों को बंद किया है। But don't believe the lies of the enemy. If a door is opened by God, nobody can shut. लेकिन शैतान की बातों पे यकीन न कीजिए। अगर परमेश्वर ने कोई द्वार खोला है, कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता है। आमीन। Impossible. ये असंभव है। And why he is opening the door here? परमेश्वर वो द्वार क्यों खोल रहा है? Because in this verse, the person, the pastor who kept his word, क्योंकि जो पास्टर ने अपने वचनों को रखा था, he did not deny the word of God. उसने परमेश्वर का वचन का इनकार नहीं किया। In other words, he accepted the living word, Jesus Christ. इसका यह मतलब है कि उसने वो जीवित वचन, वो यीशु मसीह है, उसको स्वीकारा। And he was connected with the master door, that is Jesus Christ. और वो जो है, वो जो बड़ा द्वार है, वो जो यीशु मसीह है, उसके साथ में उसका मिलन हो गया, कनेक्शन हो गया। Now, a door is opened for him. अभी आपके लिए एक द्वार खुल गया है। If you connect with Jesus, I again say, if you connect really with Jesus Christ, doors will be opened. अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए द्वार खुल जाएंगे। आप में Not one door, multiple doors. एक द्वार नहीं, अलग अलग द्वार खुल जाएंगे। Just believe that while I am preaching today, many doors are opening here. आप विश्वास कीजिए कि जैसे भविष्यवक्ता मानिए अभी प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए कई द्वार खुल रहे हैं। आमीन। 21 doors. This is the 21 people watching, including me. 21 doors are opening now. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि 21 लोग इस सभा में जुड़े, उनको मिलाकर तो भविष्यवक्ता मानी घोषणा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में 21 द्वार खुल रहे हैं। आमीन। I see the door. I see the name Anushika Lesu. अनुशिका, And what I am seeing is something unbelievable right now. इनके जीवन में कुछ भी अचंभव वाला बातें परमेश्वर बता रहा है अनुशिका के। I can see that you are going to meet a person who is it's a big political figure. आप एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होंगी जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा आदमी है। A big I cannot say the name here, but I can see that नाम मैं बता नहीं सकता। you are standing with that person. आप उस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं। A favor is coming to you. एक अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। Also, I can see that place and where you are standing. मैं उस जगह को भी देख सकता हूँ और उस स्थान को भी। But connect with the word and the Holy Spirit. लेकिन वचन के साथ में आप जुड़ जाइए और पवित्र आत्मा के साथ। If any of you have not accepted Jesus as the Savior, today the Holy Spirit is saying, accept Jesus as your Savior. अगर आप में से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है ये समय है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए।
If you really accept Jesus as your Savior, the next step is take baptism. अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो दूसरा कदम यह है कि आप बपतिस्मा लीजिए। There is a person is already watching my message who recently got baptized. यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भविष्यवक्ता मानी के वचनों को सुना और उन्होंने फिर जाकर बपतिस्मा भी लिया। आमीन। And I saw many miracles are happening in his life. अब भविष्यवक्ता मानी ने देखा कि उनके जीवन में अभी बहुत सारे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, Only because of he accepted Jesus Christ and obeyed the command. क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और उसका आज्ञा का पालन किया बपतिस्मा लेने में। To accept Jesus, many doors will open. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो कई द्वार खुल जाते हैं। You can see, if you go back to the previous verse, we can see that John heard a voice. तो पहले वचन प्रकाशित वाक्य 3:7 में देखते हैं कि यूहन्ना ने एक आवाज को सुनी। First, he saw the vision of a door. पहले उसने एक दर्शन देखा द्वार का। Second, he heard a voice. फिर उसने एक वाणी को सुना। In your vision, you will hear the voice of God. आप अपने दर्शन में परमेश्वर की वाणी को निश्चय सुनेंगे। You may think that how an ordinary person like me hear the voice of God. आप बोलेंगे एक साधारण व्यक्ति मैं कैसे परमेश्वर की वाणी को सुन सकूंगा। Some people are thinking like that. कुछ लोग के मन में ये विचार आ रहा है। But again, I say to you, you will hear the voice. फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निश्चय परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। How many of you believe it? You will hear the voice of God. कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे? Because I am not preaching my imagination, I am preaching the word of God. मैं परमेश्वर वाणी बोल रहे कि मैं अपनी कल्पनाओं का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की वचनों को प्रचार कर रहा हूं। In John chapter 10 verses 27, यूहन्ना 10 का 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. मेरे भेड़े मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन। That means you are the sheep of Christ. इसका यह मतलब है कि हम सब लोग यीशु मसीह के भेड़े हैं। If you are the sheep of Christ, definitely you will hear his voice. यदि हम यीशु मसीह के भेड़े हैं तो निश्चय हम उसकी वाणी को भी सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। It is not reserved for special people. ये जो आवाज है कुछ लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। Reserved for his sheep. ये वाणी यीशु मसीह के भेड़ों के लिए है। Everyone who accepted Jesus as his savior will hear his voice. जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, वो लोग निश्चय यीशु मसीह की वाणी को सुनेंगे। आमीन। So in your vision you will hear a voice. आप अपने दर्शन में यीशु मसीह की वाणी को निश्चय सुनने वाले हैं। आमीन। And many of you are going to listen to his voice. और कई लोग उसकी वाणी को सुनने वाले हैं। And it is your time to ascend to the next realm. और अभी आपका समय है उस दूसरे ओहदे पे तब्दील होने के लिए। You can see that if you go back to the verse, it is written, John heard the voice and the voice said, come up here. अगर हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना ने परमेश्वर की वाणी को सुना जो उससे कहा कि तू आ ऊपर आ। So if you saw a vision and heard a voice, the next step is ascending to the next realm. अगर आपने परमेश्वर का दर्शन देखा और परमेश्वर की वाणी को भी सुना, फिर उसके बाद आता है कि परमेश्वर आपको बोलेंगे अभी आप और अगले ओहदे पे आ जाओ, दूसरे कदम पे आ जाओ। Your life will never be the same. आमीन। आपका जीवन अभी परमेश्वर तब्दील कर देगा और वैसा नहीं रहेगा पुराना। In every area, the spiritual, physical, financial, every area, you will go to the next realm. हर एक क्षेत्र में, आपके आत्मिक में, शारीरिक में, भौतिक में, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। You will see vision. आप दर्शन देखेंगे। You will see doors. आप द्वार को देखेंगे। You will hear voice. आप वाणी को सुनेंगे। And you will ascend. और आप ऊंचे ओहदे पे उठेंगे। आमीन। And your spiritual realm, while you are hearing my message, it is changing right now.
और आपका आत्मिक औदा अभी अभी तब्दील हो रहा है, जैसे आप मेरे वाणी को सुन रहे हैं। आमीन। And some of you will ascend to the realm of his throne. और आप में से कई लोग कुछ लोग यहाँ पर वो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। आमीन। Already a supernatural door is open. अभी एक अलौकिक द्वार खुल चुका है आपके लिए। आमीन। And if you believe, we अगर are आप going विश्वास to करते हो, we are going to see the next realm. अगर आप विश्वास करेंगे, हम एक दूसरे औहदे पे जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले And हैं। I'm going to pray for everyone. अभी भविष्यवक्ता मानी सभी के लिए प्रार्थना करने वाले And हैं। today's message was short, but the revelation is powerful. आज का जो वचन था वो छोटा था, लेकिन प्रकाशन बहुत तब्दील है, बहुत बड़ा है। So the Holy Spirit is saying you will see vision, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप दर्शन को देखेंगे। you will see voice, you will hear voices, हियर द वॉइसेस, आप वाणी को सुनेंगे, you will see door, आप द्वार को देखेंगे, and you will go to the next realm. और परमेश्वर आपको दूसरे औहदे पे लेके जाने वाला है। I'm आमीन। going to pray. I'm just believe that. Just pray in tongues for some अब everyone. सब I'm लोग going to अन्य pray. भाषा में प्रार्थना कीजिए, और सभी लोग अभी समय आ गया अपने वीडियोस को ऑन करने के लिए। समय आ गया, प्लीज अपने स्टार्ट योर वीडियोस। दिस इज द टाइम व्हेन मैन ऑफ गॉड इज गोइंग टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस, अन्य भाषा में प्रे करो, स्पीक इन टंग्स। रंदा ला लबी लहा लहोर I'm बे going to रबे pray. रबी। If you have the faith, the Holy Spirit will talk to you. अगर आपके पास विश्वास है, निश्चय पर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। In the name of Jesus. Rahalo यीशु Shahar. मसीह के सामर्थ्य नाम अपने वीडियोस ऑन कीजिए। रखे लोहो रबी रहा रबा रबा रबे 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 रबो लही ला रबा 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 शला In खला the लबा mighty लहा name of Jesus. रबे। In the यीशु के mighty सामर्थ्य name. नाम से Lord, I'm praying for each and everyone. Each पिता and परमेश्वर, मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यहाँ पर। release the revelation in their life. ये प्रकाशन उनके जीवन में आने दो प्रभु। I command I command all the demonic realm to remove from their life. मैं आज्ञा देता हूँ हर एक शैतानी बातें उनके जीवन से निकल जाए। I close every demonic दो door in their life. हर एक शैतानी द्वार को उनके जीवन से मैं बंद कर देता हूँ। I'm opening every spiritual doors in their life. हर एक आत्मिक द्वार को उनके जीवन में मैं खोल देता हूँ। Let them hear a voice. Lasi. ये लोग परमेश्वर की वाणी को सुने। Just close your eyes. Close your eyes. सब लोग अपनी आंखें को बंद करो। Father, I pray that let their eyes be open right now. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आंखें खुल जाए। Everybody's eyes, I pray, let हर it एक की be open आंखें right now. के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let them see the glory of God right now. ये परमेश्वर की महिमा को देखे अभी इसी वक्त। The spiritual eyes is opening right now. आपकी आत्मिक आंखें खुल रही है अभी इसी वक्त। Nasimoru, Shaharadhi. आपकी आत्मिक आंखें खुल रही है। Some of you will see light. आप में से कई लोग ज्योति को देखने वाले हैं। Some of you are going to see thrones. आप में से कई लोग परमेश्वर के सिंहासन को देखने वाले हैं। Some of you are seeing angelic beings fly. और आप में से कई लोग स्वर्गदूत को उड़ते हुए देख रहे हैं। And some of you are seeing bright light. आप में से कई लोग एक बहुत तेज ज्योति को देख रहे हैं। And some of you are seeing greenery, green. आप में से कई लोग हरा हरा, जैसे हरा घास, हरा हरा पूरा। And some of you are seeing a water, it's a bottle filled with water. कई लोग एक बॉटल है जो पानी से भरा हुआ बॉटल है, उसको देख रहे हैं। Different realms, different visions are अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग दर्शन लोगों को मिल रहे हैं। आमीन। then whatever you see, it will manifest in your life. जो भी आप देखेंगे वो निश्चय आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। Also I can see that the serpents are coming out of people's life. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि कई लोगों के जीवन से वो सांप निकल रहे हैं। आमीन। All the bondages is breaking right now. सारे बंधन टूट रहे हैं। I see some people, the serpent is coming out. कई लोगों के जीवन से मानी जेकब देख रहे हैं, उनके जीवन से वो सांप निकलते हुए देख रहे हैं। आमीन। Name of Jesus, in the name, Father, I am praying for यीशु के नाम से I release the deliverance in her life in the mighty name of the Jesus. name of the person please, for whom? Binjo. भविष्यवक्ता मानी बिंजो के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में छुटकारा आ जाए। I cancel every demonic doors in the mighty हर एक name. शैतानी द्वार को हम वो नकारते हैं। I break that demonic I serpent, I break it in उस सांप को, वो की सामत को तोड़ते यीशु के नाम से।
I release a breakthrough. I release a healing in the name of एक एक Jesus. एक एक बढ़ोतरी, एक चंगाई इस बहन की जीवन में। Father, I am praying for Sister Rosie. I release a breakthrough for her. बहन रोजी के लिए एक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। The multiple doors. The Holy Spirit is saying multiple souls बहुत is सारे द्वार खुल रहे इस बहन की जीवन में। already opened. You have to see with your eyes. ये बहुत सारे द्वार पहले से खुल गए हैं, आप अपने आंखों से देखिए, आत्मिक आंखों से। I can see that this year, the coming year, it will be a different year in your life. ये साल आने वाला 2026 आपके लिए एक नया साल रहेगा, हटके रहेगा। I can see a plant is growing with many branches. एक एक झाड़ उग रहा है जिसमें अलग अलग फंदे हैं। You will see different fruits. आप अलग अलग फलों को देखेंगे अपने You are जीवन going में। to experience different fruits of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा के अलग अलग फलों को आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। Father, I am praying for Shalini Lakra. शालिनी लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। God will take you the next realm. परमेश्वर अब बहन आपको एक और दूसरे औहदे, ऊंचे औहदे पे लेके जा रहा है। And in front of your eyes, you are seeing angels. आप अपनी आंखों के सामने स्वर्गदूत को देख रहे हैं। I see a bright light is coming. मैं देख रहा हूँ एक तेज ज्योति आ रही है आपके ऊपर। The spiritual realm is changing. God will use आपका you. आत्मिक क्षेत्र तब्दील हो रहा है। Your mouth will be a powerhouse. आपकी आपकी जबान एक सामर्थ्यशील जबान बन रही है। Whatever you say, it will happen. जो भी आप अपने मुंह से बोलने वाले हैं, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। Father, I am praying for Sapna. I really सपना बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भाई। I भविष्यवक्ता release मानी, the same realm. कैन यू जस्ट रिपीट I सेम? release the same realm happen in her life. या उस इस बहन के लिए वही चीज होने दे प्रभु। And I can see that you are traveling in the spirit. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि वो देख रहे कि आप आत्मा में सफर कर रहे हैं। आमीन। And I can see also, I can see that your financial struggles, it is going to end. और परमेश्वर आपकी आर्थिक चुनौतियों को हटा रहा है। And different sources, again, different financial sources is opening. अलग अलग आर्थिक के द्वार खुल रहे हैं आपके जीवन में। आमीन। Father, I am praying for Kusum. I release a breakthrough in her life. बहन कुसुम के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। You will experience, I see again the vision, a pot, and it is overflowing with water. आमीन। आप एक मड़का देख रहे हैं, वो मड़के में पानी उमड़ता हुआ देख रहे हैं। In your life, you are going to see the overflowing of the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit. आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को उमड़ता हुआ देखेंगे अपने जीवन में। आमीन। In every area, the Holy Spirit, it is going to dominate. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा की प्रभुता होने वाली है। आमीन। Every dead areas in your household, it will be removed and you will see life. आमीन। आपके जीवन के आपके परिवार के आपके घर में जो भी मरण अवस्था है, परमेश्वर उसको हटा रहा है और उसमें जीवन दे रहा है। आमीन। God is blessing the family life. परमेश्वर आपके परिवार के सदस्यों को छू रहा है। आमीन। Father, I am praying for Sebin. I release a breakthrough in his life. भाई सिबेन के लिए बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। Whatever has stolen the enemy, I release it in the name of Jesus. जो भी शैतान ने इनकी जीवन से चुराया है, परमेश्वर उसको वापस लौटा रहा है। A harvest is coming to you. एक फसल आ रही है आपके जीवन में। And you will take every fruitful things. A harvest is coming. You will take every fruits, different kinds of fruits. आप अलग अलग फलों को लेने वाले हैं। In the name of Jesus, I release it. यीशु के नाम से मैं उसको आपको घोषणा करता हूँ। Father, I am praying for sweet sister. I release a breakthrough in her स्वीटी life. सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, बढ़ोतरी इसके जीवन में। आमीन। Whatever the Holy Spirit has spoken, I release it in the mighty name of जो Jesus. भी पवित्र आत्मा ने इसके बारे में बोला, मैं घोषणा करता हूँ। Your status will change and you आपका औहदा बदल रहा है। will never take resources from any person. You will give it to other person. आप लोगों से मांगने वाले नहीं होंगे, लेकिन लोगों को देने वाले लोग बनने वाले। आमीन। Father, I am praying for Josephine Naik. I release a breakthrough in her life. बहन जोसेफीन के जीवन में एक बढ़ोतरी आ जाए प्रभु। घोषणा कर रहे Whatever हैं। prophecy she heard, I command, let it manifest in her life. जो भी भविष्यवाणी जोसेफीन नाइक ने सुना, उसके जीवन में हम घोषणा करते कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए।
Your life in India is very short. God will bring you टेक यू to आउट। another country, take out you to another country. आपका जीवन भारत देश में कुछ ही समय के लिए है, और उसके बाद परमेश्वर आपको जल्दी एक दूसरे देश में, विदेश में लेके जा रहा है। आमीन। Maybe there is no chance, there is no opportunity, but it will happen. आपके लिए बातें संभावना नहीं हो रही है, दिखाई देती, संभावना की कोशिश नहीं है, फिर भी परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में। While I आमीन। am praying for Emmanuel, I release a breakthrough in his life. भाई इमानुएल के जीवन में बढ़ोतरी को घोषणा करते हैं। All the serpent, I command it to leave सारे from सांप his को life. हम आज्ञा देते हैं कि इसको छोड़ के चले जाए। I release life in his life. इनके जीवन में हम इनके इन इनके Release life. Life लाइफ of इन द फैमिली और लाइफ इन हिज बॉडी। life in his life. That means in ओके, all इन areas. एवरी एरिया, Area. इन एवरी एरिया। ओके, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में हम जीवन घोषणा करते। Emmanuel, a new chapter is going to open in your life. भाई इमानुएल, एक नया चैप्टर आपके जीवन में खुल रहा है, परमेश्वर खोल रहा है। In some area you have a torment, but it will lifted up from your कुछ life. क्षेत्र में आपको सताव आ रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको हटा रहा है। आमीन। Father, I am praying for Christian Tapok. I release a breakthrough in her life. क्रिश्चियन टापो के लिए बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। And you will see, and this is the verse I am getting from Lord. Because of anointing, the yoke will be broken. यस, Isaiah 10:27 if I'm correct। ये अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ा जा रहा है। Just be with the Lord for many times परमेश्वर के साथ बने रहिए, and connect with the Word of God. परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़े रहिए, And you are going to receive encounters from God. और परमेश्वर के साथ आपका सामना होने वाला है। Father, I am praying for Vivesini. I release a breakthrough in her life. बहन विवेचनी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में बढ़ोतरी आ जाए। And again, I receiving a word from God, that is Deuteronomy chapter 28. You will lend to many nations. आमीन। अब विवेचनी, परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि आप राष्ट्रों को देने वाले। वैसे 28 में लिखा है कि आप राष्ट्रों को देंगे। आमीन। Whatever may be your situation now, it will never affect you. You will जो not भी affect आपकी the situation. इट विल नेवर अफेक्ट यू, एंड देन She will come out of her Okay. situation. आपकी जो परिस्थिति अभी जो है, वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, और परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है। आमीन। God is seeing a truth in you. ट्रूथ, Ruth. रूट। परमेश्वर आपके जीवन में वो जड़ को देख रहा है। No. Ruth, the person. रूथ, बहन रूथ। परमेश्वर आपके जीवन में वो रूथ नाम की जो बहन थी, उसके समान देख रहा है आपको। God blessed the life of Ruth. परमेश्वर ने रूथ बहन की जीवन को आशीष किया। In the same way, God is going to bless you. उसी तरीके से परमेश्वर आपको भी रूथ बहन के समान आशीष दे रहा है। Exact same way. You will उसी see. तरीके से भी आपके जीवन में आ रहा है आशीष। Vivesini, I see a marriage is coming to you. आमीन। बहन विवेचनी भविष्यवक्ता मानी बोल रहे, आपके लिए एक शादी होते हुए देख रहे हैं वो। आमीन। And it will happen. It will be a blessed moment for you. और ये एक आपके जीवन का आशीष का कारण होने वाला है। Father, I am praying for Vincent. I release a breakthrough in his life. भाई विंसेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी आ जाए। All the diseases that is coming from the ancestors, I cancel it in the name of Jesus. सारी बीमारियां जो पूर्वजों से आ रही है, उसको हम नकारते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। Vincent, God loves you. विंसेंट भाई, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Whether I don't know, whatever it is, God loves you. मुझे नहीं मालूम, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And you will see His love in your family. और आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देखेंगे। And through you, many people are going to come to Christ. और आपके द्वारा से कई लोग यीशु मसीह में आने वाले हैं। आमीन। Instead, I can see that you are going to baptize. विंसेंट भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि वो देख रहे कि आप बपतिस्मा दे रहे हैं। And God will give you an opportunity. Take the opportunity. परमेश्वर आपको मौका दे रहा, आप उस मौके को ले लीजिए। Father, I am praying for Praveen. I release a breakthrough in his life. भाई प्रवीण के लिए बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। The Holy Spirit is saying the door is already open. You have to see it with your eyes.
परमेश्वर वो बोल रहा है कि वो द्वार खुल चुका है, आपको अपनी आंखों से देखना है। Father, I am releasing a big amount in his account in the name of Jesus. इनके बैंक के खाते में एक बड़ा अमाउंट को हम घोषणा करते हैं। आमीन। Within days, you are going to find a place for your office. कुछ ही दिनों में आपके एक जगह मिलने वाला है अपने ऑफिस को शुरुआत करने के लिए। आमीन। God has already arranged a place where you can shift. परमेश्वर ने पहले से ही तय कर चुका है कि आपको कहाँ पे तब्दील होना है। There will be no burden of money. पैसों का आपके ऊपर में कोई बोझ नहीं होने वाला है। Everything will be provided for you. सब बातें आपको प्रबंध की जाने वाली है। आमीन। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, I am praying for Anushika and family. I bless their life in the name of Jesus. अनुशिका और परिवार को हम आशीष देते हैं। Father, I am praying for Sheetal Kiran. I bless her life in the name of Jesus. शीतल बहन के लिए हम आशीष घोषणा करते हैं। I bless her journey. I bless her job in the name of Jesus. उसके सफर और नौकरी को हम आशीषित घोषणा करते हैं। Father, I am praying for Regimon. I release a breakthrough in his life. भाई रेजिमोन के लिए एक बढ़ोतरी घोषणा करते हैं। Let his house be filled with joy. Let them see इसका the परिवार आशीष से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। In the name of Jesus, I pray. Amen. Yes. This Sital Kiran, Yeah. Vivo and Beryl, can you please start your videos, Beryl brother, if you are there. Beryl. Is there anyone next, brother? Yes, they are there. Just. Okay. Beryl, Sital and Vivo V2416. V2416. Start videos. Video चालू करो. Sital Kiran. Okay. Yeah, you not started. Beryl. Yes, yeah, Beryl. He's my brother-in-law. He's a pastor. He's a pastor, okay. and he's a pastor from New Zealand. Actually now I am at his house. They are running an orphanage. Okay. This house that you're seeing is not my house. You can see the background. Okay. Yeah, it's a different background. Your brother-in-law? Yeah, he's my brother-in-law. He's a Telugu man. He speaks Telugu, and he's from New Zealand. His wife and my wife both are sisters. Okay. I will pray. Father, in the name of Jesus, I am praying for Beryl in the mighty name पिता of परमेश्वर यीशु के नाम से बेरिल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। I release an open door in his life. एक खुला द्वार इस भाई के जीवन में हम घोषणा करते हैं। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of यीशु Jesus. मसीह के सामर्थी नाम से I can see that some documents is coming to your hand. मैं देख रहा हूं कि कुछ कानूनी कागज आपके पास आ रहे हैं। I see a land is being given to you. एक जमीन भूमि आपको दी जा रही है। I see a place where there is green. एक ऐसा स्थान जहाँ पे पूरा हरा हरा है। And I can see that a favor is opening and a land is coming to you. एक अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है और भूमि भी आपको मिल रही है। आमीन। I don't know why I am seeing a golf, something like it is near that place. एक ऐसा स्थान where there is a golf course. You mean golf course? Yes, something like that. I see when I am seeing in the vision, I see somewhere that is near in that place. जब वो दर्शन देख रहे तो भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि जैसा गोल्फ कोर्स में जो हरियाली रहती जहाँ पे गोल्फ खेलते उसके पास में वो भूमि उनको मिल रही है। So this is going to happen. There is no chance, but it will happen to you. ये कोई संभावना नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। आमीन। I'm also getting a name, Austin. I'm getting a name. A connection is coming to you. Austin. Yes. Okay. Austin. एक कनेक्शन आ रहा ऑस्टिन के नाम से। Father, I release that prophecy in his life in the name of इस भविष्यवाणी को इस भाई के जीवन में हम घोषणा करते हैं। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। Next, but I think we have prayed for everyone. Yes, we have prayed for everyone. Yeah. Thank but you. The other two people, they have not started the videos. Maybe they are not in the. Maybe they may be. I think. Yeah. Because the time is 10:40. I think. Yeah, 10:40. Yes, 10:40. Yes. Okay, so thank you for joining again. धन्यवाद सभी को आपने जो जुड़े यहाँ पर। Hear this message on the YouTube. इस वचन को YouTube पे